Asansol, sponsored by Taiba Collection, Taiba, Global Wallpaper, and co-sponsored by Furniture World. आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज आसनसोल भाजपाइयों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि प्राप्त फीडबैक के अनुसार हम लोग आराम से आसनसोल नगर निगम में बोर्ड गठन करने वाले हैं। इसी क्रम में जो पहला सिद्धांत भाजपाइयों की ओर से लिया गया कि जिस दिन शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी उसी दिन एक कर्म सूची की घोषणा करेंगे। काउंसिलर आपनार द्वारे मेयर आपनार पाड़ाए। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस कॉन्सेप्ट के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए एक डेडिकेटेड नंबर रखा जाएगा और वार्ड का कोई भी व्यक्ति आसनसोल नगर निगम अंतर्गत मिलने वाले कोई भी परिसेवा के लिए इस डेडिकेटेड नंबर पर फोन कर सकता है। दूसरा सिद्धांत 106 वार्डों में एक म्युनिसिपल नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो आसनसोल नगर निगम अंतर्गत मिलने वाले एक वार्ड के सभी परिसेवा की देखरेख करेंगे। प्रत्येक नोडल ऑफिसर को 21,500 रुपए ऑनरेरियम दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उन्हें परमानेंट करने का जो प्रोसेस है जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसनसोल नगर निगम के चुनाव ऑब्जर्वर व भाजपा नेता विद्यासागर, दिलीप दे, अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी सहित अन्य भाजपाई खास तौर से उपस्थित थे। কাজ প্রাইসিস এবং আমরাও বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমাদের সার্ভের কাজ চালাচ্ছিলাম এবং আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে আমাদের কাছে যা ফিডব্যাক এসেছে দলীয় স্তরে আমাদের তাতে আমরা খুব কমফোর্টেবলি আমরা কিন্তু আসানসোল পৌর নিগম আমাদের বোর্ড গঠন করতে চলেছি। কিন্তু আমরা চাই না যে এই কোভিডের টাইমে বোর্ড গঠনের পর একদিনও মানুষকে পরিষেবা দিতে আমাদের একদিনও দেরি হোক, এটা আমরা চাই না। তাই কিছু সিদ্ধান্ত বোর্ড গঠনের পর আরও আমরা কি করতে চলেছি কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বসে স্থির করছেন, টাইম টু টাইম সেটা আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করব। প্রথম যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি যে যেদিন আমাদের কাউন্সিলরদের শপথ হবে, যেদিন আমাদের মেয়র শপথ নেবে, ডেপুটি মেয়র শপথ নেবে, তিনি আবার এমআইসিদেরকে শপথ দেবেন, সেদিনই আমরা একটা কর্মসূচি ঘোষণা করতে চলেছি যে কাউন্সিলর আপনার দ্বারে, মেয়র আপনার পাড়ায়। কাউন্সিলর আপনার দ্বারে, মেয়র আপনার পাড়ায়। এটা আমাদের কনসেপ্ট হলো যে কাউন্সিলরের কাছে মানুষকে আর যেতে হবে না, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য আমাদের একটা ডেডিকেটেড নাম্বার থাকবে। সেদিনই আমরা ঘোষণা করব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য একটা ডেডিকেটেড নাম্বার থাকবে এবং সেই ডেডিকেটেড নাম্বারে যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো পৌর পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় থাকলে তিনি ওই নাম্বারে ফোন করবেন এবং ফোন করার 3 ঘন্টার মধ্যে কাউন্সিলর বা তার প্রতিনিধি ওই ব্যক্তিকে গিয়ে অ্যাটেন্ড করবেন বাড়িতে। কাউন্সিলর যেটা আমরা বলছি, কাউন্সিলর আপনার দ্বারে। আর মেয়রের ক্ষেত্রে মানুষকে যেতে হবে না। কোনো অঞ্চল থেকে যদি মেয়রের কাছে ফোন গেল যে না আমাদের অঞ্চলে এই রাস্তাটা খারাপ আছে, তো উইদিন 72 আওয়ার্স 72 ঘন্টার মধ্যে তারও একটা আলাদা ডেডিকেটেড নাম্বার থাকবে পৌর নিগম। 72 ঘন্টার মধ্যে মেয়র বা তার প্রতিনিধি ওই অঞ্চলে গিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষের যে সমস্যার কথা যেটা বলেছেন, পরিষেবার কথা, সামগ্রিকভাবে যে পরিষেবার কথা বলছেন সেটা কিন্তু তিনি দেখবেন এবং সেই কাজটা আমরা দেখার পর তিনি সমাধানের চেষ্টা করবেন। এটা তো হলো প্রাইমারিলি আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রবলেম। এরপর ওয়ার্ডের পরিষেবা কিভাবে দেওয়া হবে তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের সবাই বসে যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে যেদিন মেয়র শপথ নেবে তার 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা নোটিফিকেশন দেব যে প্রত্যেক ওয়ার্ডের পুরো পরিষেবা দেখার জন্য একটা করে নোডাল অফিসার আমরা নিয়োগ করব। 106টা ওয়ার্ডেই মিউনিসিপাল নোডাল অফিসার আমরা নিয়োগ করব এবং তার কাজ হবে যে কোনো কর্পোরেশনের সব ব্যাপার তিনি দেখবেন, লাইট থেকে নিয়ে, জল থেকে নিয়ে, নিকাশি ব্যবস্থা থেকে নিয়ে, মিউটেশন থেকে নিয়ে, রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ এন্ড ডেথ থেকে নিয়ে, পৌর পরিষেবা বলতে যা বোঝায় সবটার জন্য তিনি রেসপন্সিবল থাকবেন। 21,500 টাকা সম্মানিক দিয়ে, স্যালারি দিয়ে, অনারেরিয়াম দিয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে 21,500 টাকা অনারেরিয়াম দিয়ে আমরা ওয়ার্ড লেভেল নোডাল অফিসার নিয়োগ করব, যিনি ওভারঅল ওই যে কাউন্সিলরের কাছে বিভিন্ন কমপ্লেন আসবে, মেয়রের কাছে বিভিন্ন কমপ্লেন আসবে, সেগুলো এক্সিকিউশনের যে পার্টটা তিনি দরকার হলে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি দরকার হলে লাইট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি দরকার হলে পানীয় জলের যে ডিপার্টমেন্ট তার সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি ওভারঅল দায়িত্বে থাকবেন, তিনি ওয়ার্ডের
ওয়ার্ড লেভেল নোডাল অফিসার আমরা নিয়োগ করবো। 21,500 টাকা তার সালমানিক হবে, অনারেরিয়াম থাকবে। 106টা ওয়ার্ডেই একটা করে একজন করে আমরা নিয়োগ করব এবং এর ফলে আসানসোলে আমরা একটা বেটার পরিষেবা, এটা বাংলাকে পথ দেখাবে। আসানসোল পৌর নিগম আমাদের যে বোর্ড হতে চলেছে, এই বোর্ড কিন্তু আগামী দিনে বাংলাকে পথ দেখাবে। প্রার্থী আমরা পিন্টু মুখার্জি আমরা দিয়েছিলাম। এরকম বেশ কিছু যে ওয়ার্ডগুলো মাইনরিটি ওয়ার্ড আছে সেখানে আমরা বাইরের থেকে লোক আমরা ওখানে দিয়েছিলাম। যেহেতু মাইনরিটি ওয়ার্ডে লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, হঠাৎ পরের দিন দেখলাম রেশমা রেশমা যিনি ওখানের প্রাক্তন কাউন্সিলর, উনি মন্ত্রী মলয় ঘটকের হাত ধরে একজনকে জয়েন করাচ্ছেন পিন্টু মুখার্জি বলে, বলছে আমি 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী ছিলাম। তারপরে এই নিয়ে বিরাট জলঘোলা হলো, অনেক প্রেস মিডিয়া আপনারা বললেন। অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা যেটা হচ্ছে যে পিন্টু মুখার্জি মলয় ঘটকের হাত ধরে জয়েন করলেন, সেই পিন্টু মুখার্জি এই পিন্টু মুখার্জি নয়। আমাদের কাছে যে পিন্টু মুখার্জি রয়েছে সে আমাদের 2009 থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি কর্মী এবং আমাদের 51 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ঠিক আছে, আমরা সেই পিন্টু মুখার্জিকে, এই মুহূর্তে পিন্টু মুখার্জি নেই, আমরা খবর পাঠিয়েছি, তার বাড়ি গিয়ে বলা হয়েছে আমরা, এবং যত দ্রুত সম্ভব সেই পিন্টু মুখার্জিকে এনে আপনাদের সামনে আমরা তার ভোটার আইডি প্যান কার্ড দিয়ে তাকে সামনে দেখাবো। এরকম অযাচিতভাবে এরকম জিনিস করা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। মানে আপনাদের এবং আপনাদের সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে বলবো, যে কোনো খবর করবার আগে একবার একটু সেটাকে একটু ইনকোয়ারি করে নেবেন, খবর করার জন্য নয়। মানে আপনারা একটু সবাই আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। 23 নম্বর ওয়ার্ডের যে আমাদের অরবিন্দ তেওয়ারিকে আমরা ওখানে প্রার্থী করেছিলাম, উনি নির্বাচন আমাদের নমিনেশন সেন্টারের ভিতরে দিকেছিলেন। 2:30টার সময় 2:40-এ তার কাছে ওইখানকার কাউন্সিলর রেশমার ফোন আসে এবং ফোনে এতটা ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং আপনারা জানেন 1 মাস আগেই তার বাড়িতে হামলা হয়েছে, তার বাড়িতে একটা অ্যাটাক হয়, সেই নিয়ে আপনাদেরকে আমরা জানিয়েছিলাম, থানায় কমপ্লেন হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা থানার কাছে বিক্ষোভও দেখিয়েছি। পরেই তাকে একটু আমরা সাহস জুগিয়ে আমরা দাঁড় করিয়েছিলাম, কিন্তু এইভাবে সে থ্রেটনিং তার কাছে আসে ওভার টেলিফোন, সে বিপর্যস্ত হয়ে যায় মানসিকভাবে, সে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে। এবং পরবর্তীকালে তারপর যখন ও আবার নিজেকে ঠিক করে যখন ঢুকতে যায়, সেই সময় আর ঢুকতে পারে না। आज टीएमसी सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन रानीगंज के वार्ड नंबर 88 में टीएमसी प्रत्याशी नेहा साव ने हुसैन नगर स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में मनाया। साथ ही रानीगंज मजार पर चादर भी चढ़ाया, बाबा से ममता बनर्जी की लंबी उम्र की कामना की एवं आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी और अपनी जीत की प्रार्थना की। मौके पर रेहान, साकिब, तौफीक आलम सहित अन्य स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
88 के उम्मीदवार बनने के बाद रानीगंज गौ से बंगाला के दरबार पे क्या मुकाबला पूरा करने आए? आज दीदी का जन्मदिन है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने केक काटा और चादर चढ़ा के बाबा को उनकी लंबी उम्र की हम लोगों ने कामना की। और साथ साथ इलेक्शन के लिए क्या प्रार्थना की? 88 के लिए 88 के लिए हम लोग ने यही प्रार्थना किया कि हम जीते, भारी मतों से जीते, सबसे ज़्यादा वोट से हमारा 88 लीड दे, यही हम लोगों ने बाबा। आज दीदी का बर्थडे भी उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, आज दीदी का बर्थडे है, उसी का खुशी में हम लोगों ने बाबा को चादर भी चढ़ाया और प्लस हमारा 88 वार्ड सबसे भारी मतों से जीते, उसके भी हम लोगों ने काम गरीबों में केक, तो बर्थडे के अवसर में केक भी काटे। हाँ, हम लोगों ने केक भी काटा और अभी गरीबों में हम लोग केक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको परिचय नाम पर? मेरा नाम नेहा साह है, रानीगंज महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट, 88 के उम्मीदवार। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 से भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने आज अपने प्रचार का शुभारंभ किया। भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संबंधित सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए सिर्फ 5 लोगों को लेकर ही वह प्रचार में निकले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो वार्ड की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सड़क, साफ सफाई सहित अन्य सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से मास्क पहनने की अपील की। शताब्दी चटर्जी, सभापति सिंह इस दौरान खास तौर से उपस्थित थे। आपका आशीर्वाद चाहिए वोट स्वरूप। दादा रोज छात्रावास में खड़े हुए हैं, तो अपना आशीर्वाद दे करके वोट करिए आप लोग। ठीक है, बीजेपी के वोट को हमारे सपोर्ट करें। जो गाइडलाइन आया है निर्वाचन कमीशन के तरफ से, उसके तहत हम लोग सिर्फ 5 लोगों को लेकर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक लोगों का जान बहुत कीमती है। तो जिस तरह से लोकतंत्र में चुनाव एक स्तंभ है और हम लोग अभी चुनाव का समय चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है राजनीतिक दलों का, और हम लोग वोट मांगने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग अभी अपने अपने पार्टी के लिए वोट मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। तो उसी के साथ में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना भी फैल रहा है, तो हम लोग जो है गाइडलाइन के तहत 5 लोगों को लेकर ही प्रचार में उतरे हैं। साथ साथ हम लोग अपने साथ में मास्क भी है कि जिन लोगों को हम लोग देख रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है, उनको मास्क भी दे रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहन के रखिए। कि जिस तरह से ये तीसरी लहर जो आ रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ा हथियार है उसका सामना करने के लिए मास्क, तो मास्क भी पहने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ रानीगंज सहित शिल्पांचल के सभी जनता, सभी वासियों को, कि वो मास्क ज़रूर पहने, चाहे वो घर पे भी रहे तो प्रयास करें कि मास्क पहने, क्योंकि ये समय जो है बड़ा कठिन है और इस कठिन समय से सड़कें पूरी तरह से जर्जर हैं। बगल में खटाल है, खटाल में ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना सफाई है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सुधार के लिए यहाँ की जनता से अपील करेंगे को अवसर दे, ताकि हम लोग यहाँ पे स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, ठीक किया जा सके। देखिए आज जो है परसों नॉमिनेशन था, और नॉमिनेशन करने के बाद जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कहा जाता है श्री गणेश करना, तो आज बुधवार का दिन, भगवान श्री गणेश का दिन, तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज या अपना राजपाड़ा में जो है गणेश मंदिर में दिनेश सोनी, वार्ड नंबर 93, बीजेपी प्रत्याशी। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आसानसोल पौर निगम निर्वाचने वार्ड नम्बर 97 तृणमूल प्रार्थी अनुपमा जी के जोड़ा फुले भोट दिए विपुल भोटे जययुक्त करुन।
आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 47 टीएमसी उम्मीदवार राजेश तिवारी को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 23 टीएमसी उम्मीदवार सीके रेशमा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Application number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932621836 8653839325 and 95643100088. वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस प्रत्याशी शाहबुद्दीन राजू ने आज रेल पार के धतका, तरी मोहल्ला, नई बस्ती में प्रचार और दीवार लेखन किया। राजू ने हमारे संवाददाता से कहा कि वार्ड में कांग्रेस के मुकाबले कोई नहीं है। ज्ञात हो कि शाहबुद्दीन राजू ने कुछ दिनों पहले टीएमसी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था।
आशीर्वाद हम लोग को चाहिए। 15 साल से एक ही आदमी राज कर रहा है, अब उसको खत्म करना है। नमस्कार, कांग्रेस पार्टी काफी दिन से एक ही आदमी है, पार्टी में वही आदमी आ गया, तो जो भी कर रहा है हम लोग तो अभी धक्का में दौरा कर रहे हैं और तरी मोहल्ला में किए हैं और अभी शुरुआत ही है, समझिए नई बस्ती में गए हैं। कैसा रिस्पांस? रिस्पांस तो अच्छा ही है। क्या लगता है मुकाबला किससे होगा? मुकाबला बीजेपी से। मुकाबला तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई हम कांग्रेस का कोई मुकाबला किसी से है, हाँ, लेकिन इसका फैसला जनता करेगी। कितना नंबर वार्ड? हम वार्ड नंबर 29 से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ शहाबुद्दीन राजू। आसनसोल शहर सहित आसपास के इलाकों में बढ़ती ठंड और घने कोहरे से इलाका वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है, साथ ही लोगों को देखने में काफी असुविधा भी हो रही है। हम लोग जगह जगह पे जो है वहाँ पे देखिए लकड़ी वहाँ पे गिरा हुआ है, थोड़ा सा लकड़ी जलाया जा रहा है और जिस तरीके से कुहासा कारोबार में बहुत फर्क पड़ रहा है। सुबह का तो मौसम समझिए बहुत खराब था, ऐसा धुंध था कि दिख नहीं रहा था। अभी फिलहाल तो मौसम कुछ साफ हुआ है और चाय की चुस्की जो है मौसम के हिसाब से लिया जा रहा है। आपका नाम? हमारा नाम लट्टू हुआ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है।
स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।